Hello everybody, welcome back to English classes by Mukhtar sir. I am back with part second, that's part 2 of relative classes. Okay, without wasting any of time, let's move straight to our topic, relative classes. In part first, I told you people about relative classes, is what is the definition of a relative class and all introductory information about relative classes. Today, I'm going to tell you people some important facts and then we will move on to proceed with the formation of relative classes. But before that, let me tell you people that relative classes are of two types. There are two types of relative classes. There is the subordinate class, which after having been joined with the independent class gives us information that is describes the noun or pronoun that comes before it, I mean the antecedent. Okay, such classes are of two types, and one type is called defining a relative class. Defining a relative class. The very next type is called non-defining relative class. Hence, we have got two types of relative classes. One called the defining relative class and the other one called the non-defining one. That is the non-defining relative class. Okay, let's talk about both of these types in detail. What is a defining relative class and which one is called a non-defining relative class? A defining relative class is that particular relative class that defines the antecedent coming before it. That defines the noun or pronoun that comes before it. For example, let's consider an example. We are talking about defining relative class. The boy who took poison died. We have got an example that reads like this: the boy who took poison died. Okay, now I'm going to look for the relative class, and the relative class is who took poison. Who took poison happens to be the relative class. It is the subordinate class. It is the dependent class introduced by the relative pronoun, has been joined with this independent class, further gives us information about the boy. That is the antecedent, hence this is the relative class. But this particular relative class, as far as this relative class is concerned, look at this independent class. The boy died. The boy died. We are told the boy died. And while and on, we don't know which boy has died. We don't know which boy is being referred to. Hence, this particular class defines this noun. This particular class gives us essential information. Essential information. Gives us essential information about this antecedent. This particular class defines the noun, defines the antecedent as who this boy is. Who is the boy who has died? We come to know this fact that who this boy is after having looked at this particular class. The boy died. Okay, who? Which one? Who took poison? This is the boy who has taken poison. Okay, the boy who took poison has died. Hence, who took poison gives us essential information about the boy and defines the antecedent. Defines the antecedent. Hence, such a class, such a relative class that gives us essential information about the antecedent, that defines the antecedent. Since antecedent is an indefinite noun, it's an indefinite noun, and this particular class defines this antecedent. Hence, this class is called a defining relative class, that is DRC. Such a relative class is called a defining relative class. Okay, let me simplify it in Urdu. डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास कौन सा रिलेटिव क्लास होता है? हमारे पास एक एग्जांपल है, द बॉय हु टुक पॉइजन डाइड. लड़का जिसने जहर खाया मर गया. ओके, अगर हम इसमें से इस वाले क्लास को बाहर निकालें जो हमारा रिलेटिव क्लास यहाँ पे है, यानी डिपेंडेंट क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन. ओके फाइन, अगर इसे बाहर निकालें, वी हैव गॉट द सेंटेंस लाइक द बॉय डाइड. लड़का मर गया. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जरूरी चीज यह है जानने के लिए, द बॉय डाइड, लड़का मर गया. कौन सा लड़का मर गया? वी डोंट नो.
ये जो क्लास हमारे पास है रिलेटिव क्लास, ये अब हमें बोलता है कि ये लड़का जो मर गया ये कौन है, हेंस इस नाउन को डिफाइन करता है। ये इस नाउन की पहचान के लिए जरूरी जानकारी हमें देता है। वो लड़का है ये जिसने जहर खाया, जिसने जहर खाया वो मर गया, हेंस अब हमें पता चलता है ये बॉय कौन है। इस तरह से जो ये हमारा रिलेटिव क्लास है, ये जो डिपेंडेंट क्लास है, इंट्रोड्यूस किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन से, ये हमें जरूरी जानकारी एंटीसीडेंट के बारे में देता है, एंटीसीडेंट को डिफाइन करता है। तो ऐसे ही रिलेटिव क्लास को कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, DRC. Remember, a defining relative class is also known as a restrictive relative class or an identifying relative class. Defining relative class के और दो नाम है, restrictive relative class and identifying relative class. Okay, fine. तो defining relative class किसे कहते हैं? It is that particular relative class. ये एक ऐसा relative class होता है which gives us essential information about the antecedent, which defines the antecedent. जो हमारे antecedent के बारे में हमें जरूरी जानकारी दे, जो हमारे एंटीसीडेंट को डिफाइन करे। ऐसा होता है कभी कभार कि जो हमारा एंटीसीडेंट होता है उसकी अपनी पहचान नहीं होती है, वो एक इनडेफिनिट नाउन होता है, तो उसकी पहचान के लिए रिलेटिव क्लास बहुत जरूरी होता है। और ये जो जरूरी रिलेटिव क्लास होता है एंटीसीडेंट के लिए, जो जरूरी जानकारी देता है, ऐसे रिलेटिव क्लास को डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप के बारे में, देयर इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास कौन सा रिलेटिव क्लास होता है? रिमेंबर, इट इज एक्चुअली द अपोजिट ऑफ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास का अपोजिट है। इफ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास गिव्स अस एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसीडेंट, अगर ये हमें डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास अगर हमें जरूरी जानकारी एंटीसीडेंट के बारे में देता है, तो जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है ये गैर जरूरी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें देता है अबाउट द एंटीसीडेंट। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हम यहां पे कहेंगे कि ये हमें देता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो जरूरी नहीं होती है एंटीसीडेंट की पहचान के लिए। इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बिना भी हमारा एंटीसीडेंट एक डेफिनेट नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल, मिस्टर दानिश who took poison died. बिल्कुल जैसी एग्जाम्पल मैंने इससे पहले लिखी थी। दिस वेरी एग्जाम्पल आल्सो रीड्स लाइक दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल। दिस रीड्स लाइक मिस्टर दानिश हु टुक पॉइजन डाइड। ओके फाइन, वी हैव गॉट अ सेंटेंस, हमारे पास एक सेंटेंस है दैट कंसिस्टेड ऑफ अ रिलेटिव क्लास, जिसमें एक रिलेटिव क्लास है। इफ यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर क्लास हु टुक पॉइजन, दिस हैपेंस टू बी द रिलेटिव क्लास। दिस इज द डिपेंडेंट क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन एंड आफ्टर हैविंग बीन जॉइंड विद द इंडिपेंडेंट क्लास गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसीडेंट। फाइन, नाउ लेकिन प्रॉब्लम क्या है? द इश्यू दैट वी हैव गॉट टू टैकल विद, दैट वी हैव गॉट टू डील विद इज दैट यहां पे जो अगर इस डिपेंडेंट क्लास को हम बाहर निकालें, वी हैव गॉट मिस्टर दानिश डाइड। ओके, दानिश मर गया, मिस्टर दानिश मर गया, तो हमें पता है यहां पे कौन मर गया है। अब ये बताना मिस्टर दानिश वो दानिश हु टुक पॉइजन जिसने जहर खाया, ये जरूरी नहीं था पहचान के लिए मिस्टर दानिश की। सिंस दिस इज अ डेफिनेट नाउन, क्योंकि ये एक डेफिनेट नाउन है, इसकी अपनी पहचान है, ये और पहचान और जानकारी का मोहताज नहीं है। तो ये जो जानकारी यहाँ पे रिलेटिव क्लास हमें देता है कि वो मिस्टर दानिश मर गया जिसने जहर खाया, जिसने जहर खाया। यहाँ पे इस एंटीसीडेंट मिस्टर दानिश के बारे में दी गई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें पता है कि दानिश मर गया, दानिश के बारे में कहा गया कि वो मर गया। सेकंड थिंग, इसके बारे में और जानकारी दी गई है, कौन मिस्टर दानिश? वो मिस्टर दानिश जिसने जहर खाया। सिंस तो इस तरह से, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ये एसेंशियल या नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं देता है अबाउट द एंटीसीडेंट। ये वाला क्लास इस एंटीसीडेंट की पहचान के लिए जरूरी नहीं है, तो इस रिलेटिव क्लास को हम कहते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, NDRC। रिमेंबर, जैसा मैंने कहा कि डिफाइनिंग क्लास, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास इज आल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास और आइडेंटिफाइंग वन। सिमिलरली, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास इज आल्सो नोन एज नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास और नॉन आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लास। इसे हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास भी कहते हैं या नॉन आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लास, नॉन आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लास भी कहते हैं।
ओके फाइन। तो अब जो हमारा ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, यहीं पे मैं आपको बोल दूं, जब कभी भी एक रिलेटिव क्लास हमारे एंटीसीडेंट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, ये तब होगा जब एंटीसीडेंट किसी और जानकारी का मोहताज ना हो, जब एंटीसीडेंट अपनी पहचान रखता होगा। ओके, तो जो ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास हमारे पास होता है, लाइक इन दिस एग्जांपल, जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास है, इस नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास को इज ऑलवेज पुट इन कॉमास, हम हमेशा कॉमास में रखते हैं। Remember, do not forget, ये नहीं भूलना कि a non-defining relative class is always put in commas, इसे हम हमेशा commas में रखते हैं, and as such separated from the independent class, इस तरह से हम इसे अलग करते हैं हमारे independent class से। तो relative classes are of two types, इस तरह हमारे पास relative class के दो types हैं। One type is called the defining relative class that gives us essential or necessary information about the antecedent, and non-defining relative class, this is that relative class which gives us unessential extra information, I can say, which gives us extra information about the antecedent. And also remember, a non-defining relative class is always put in commas. Non-defining relative class को हमेशा commas में रखा जाता है। We talked about relative pronouns in part first. Part first में हमने relative pronouns की बात की। हमने कहा ये कुछ ऐसे pronouns होते हैं जिनमें एक force होता है to do the job of joining, जिनमें join करने का काम करने की सलाहियत हो। ऐसे relative pronouns जब join करने का pronouns जब join करने का काम करते हैं are called relative pronouns. And I told you people that we have got 10, हमारे पास 10 हैं। Let me tell you people, as far as the relative pronouns are concerned, जहां तक रिलेटिव प्रोनाउंस का ताल्लुक है, जहां तक इनका सवाल है रिलेटिव प्रोनाउंस का, रिलेटिव प्रोनाउंस रिमेंबर इन द फील्ड ऑफ रिलेटिव क्लासेस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव क्लासेस, चूंकि हम रिलेटिव क्लासेस की बात कर रहे हैं, इन दिस पर्टिकुलर फील्ड जब हम रिलेटिव क्लास की बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। रिलेटिव प्रोनाउंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यानी हम अब कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर ऑफ टू टाइप्स। वन कॉल्ड सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, and the other type is called object relative pronouns. Object relative pronouns. Hence we have got relative pronouns which are categorized into two categories in the field of relative classes, and one of these categories are type is called subject relative pronoun, and the other one is called object relative pronoun. Let's talk about subject relative pronouns, कि ये subject relative pronouns कौन से relative pronouns हैं और object relative pronouns कौन से relative pronouns हैं। Remember, subject relative pronouns are those relative pronouns, ऐसे RPs, ऐसे relative pronouns which are used, जिन्हें इस्तेमाल किया गया हो before, जिन्हें इस्तेमाल किया गया हो पहले, लेकिन किससे पहले? Before a verb. V stands for verb, remember. So RP is used before verb. ऐसे relative pronouns which are used before a verb are called subject relative pronouns. उन्हें subject relative pronouns कहते हैं। And remember, relative pronouns, ऐसे relative pronouns which are used, जिन्हें इस्तेमाल किया जाए बिफोर, पहले, जिन्हें इस्तेमाल किया गया हो पहले, लेकिन किससे पहले? यहां पे हमने कहा जब रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब से पहले इस्तेमाल हो तो सच रिलेटिव प्रोनाउंस आर कॉल्ड सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाएं बिफोर ए नाउन, किसी नाउन से पहले, और प्रोनाउन या प्रोनाउन से पहले, अगर हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल हो बिफोर ए नाउन, एक नाउन से पहले या किसी और प्रोनाउन से पहले, सच रिलेटिव प्रोनाउंस आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ओके फाइन, हम आगे ये भी देखेंगे एज व्हाट वाज द नीड, जरूरत क्या थी टू डिवाइड दीज रिलेटिव प्रोनाउंस इन दीज टू टाइप्स, इन रिलेटिव प्रोनाउंस किन दो टाइप्स में डिवाइड करने
की हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल यू नीड टू रिमेंबर दैट इन द फील्ड ऑफ रिलेटिव क्लासेस रिलेटिव प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज called subject relative pronouns and object relative pronouns. Subject relative pronouns are those relative pronouns which are used before a verb, जो एक verb से पहले इस्तेमाल हों, and relative pronouns being used before a noun or pronoun. Relative pronouns जिसे इस्तेमाल किया जाता है noun या pronoun से पहले are called object relative pronouns. Okay, fine. Let's move ahead. Repeating the information for you people कि रिलेटिव क्लास एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, ये एक डिपेंडेंट क्लास होता है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन से। इसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन देता है एंटीसीडेंट के बारे में। अब क्या है, वी आर गोना टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव क्लासेस। Let me tell you people कि आप लोगों ने ये टॉपिक इससे पहले भी पढ़ा होगा। 11th-12th के जो स्टूडेंट हैं, 11th-12th के स्टूडेंट्स ने 10th में पढ़ा होगा, 10th के स्टूडेंट्स ने अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो 11th-12th के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पढ़ा है, डू वॉच इट, मे बी यू मे फाइंड समथिंग न्यू। हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले, तो वॉच इट, जरूर देखना इसे, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। तो फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव क्लासेस, लेट मी टेल यू पीपल व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इन योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स में आपसे क्या करने के लिए कहा जाता है? लेट मी टेल यू पीपल, यू विल बी गिवन ए पेयर ऑफ सेंटेंसेस। आप लोगों के पास दिए गए होंगे ए पेयर ऑफ सेंटेंस, आई मीन ए कपल ऑफ सेंटेंसेस, 2 सेंटेंस दिए गए होंगे, और उसके बाद यू विल बी आस्क्ड, आप लोगों से कहा जाएगा टू ज्वाइन द गिवन 2 सेंटेंसेस, कि दिए गए 2 सेंटेंसेस को आप मिलाओ, ज्वाइन करो। लेकिन साथ में ये कहा गया होगा, ज्वाइन इन अ वे, इस तरह ज्वाइन करो दैट द रिजल्टेंट सेंटेंस, की जो नया सेंटेंस आपके पास होगा, मस्ट कंटेन अ रिलेटिव क्लास, उसमें एक रिलेटिव क्लास होना चाहिए। यानी आपको ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें रिलेटिव क्लास हो, तो सॉरी जिसमें रिलेटिव क्लास हो। एक सेंटेंस में एक ही हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, खैर वो दूसरी बात है। फिलहाल रिलेटिव क्लास कैसे बनाना है, तो रिलेटिव क्लास, फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव क्लासेस में आपसे कहा जाएगा ज्वाइन ए गिवन पेयर ऑफ सेंटेंसेस, दिए गए 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करो, बट इन अ वे, लेकिन इस तरह करो दैट द रिजल्टेंट सेंटेंस, की जो नया सेंटेंस आपके पास होगा, मस्ट कंटेन अ रिलेटिव क्लास, उसमें जरूर होना चाहिए एक रिलेटिव क्लास। तो आपको 2 सेंटेंसेस ज्वाइन करके एक रिलेटिव क्लास बनाना है। तो देखते हैं ये जो फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव क्लास है, कि अगर आपके पास ऐसे पेयर ऑफ सेंटेंसेस दिए गए होंगे तो आप कैसे बनाओगे उन्हें मिला के एक रिलेटिव क्लास। लेट्स सी। Before straight away moving towards the topic formation of relative class and starting forming a relative class, let me tell you people, जब कभी भी हम ग्रामर में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, we need to know about certain fundamentals, कुछ फंडामेंटल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें हमें पढ़ना पड़ता है, उनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। व्हाट आर दोज? लेट्स टॉक अबाउट दोज फंडामेंटल्स फर्स्ट। उन फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं पहले, कि फंडामेंटल्स क्या है, हम कब रिलेटिव क्लासेस कैसे बनाएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। आई एम सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू पीपल। ओके फाइन। सो द फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू डू, पहली चीज, पहला काम जो आपको करना होगा वो होगा, द फर्स्ट थिंग इज टू लुक फॉर एन एंटीसीडेंट। लुक फॉर एन एंटीसीडेंट। अपने नए सेंटेंस के लिए एक एंटीसीडेंट ढूंढो। ये एंटीसीडेंट आप कैसे ढूंढोगे, वी विल सी इट, हम आगे देखेंगे इसे कि एंटीसीडेंट आप कैसे ढूंढोगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि रिलेटिव क्लासेस बनाने के लिए सबसे पहले वी लुक फॉर एन एंटीसीडेंट, हम एक एंटीसीडेंट ढूंढते हैं। द सेकंड थिंग इज टू यूज, जो दूसरी चीज है वो है यूज ए रिलेटिव प्रोनाउन। यूज ए रिलेटिव प्रोनाउन। एक रिलेटिव प्रोनाउन को आपको इस्तेमाल करना है एंटीसीडेंट को ढूंढने के बाद। जब मैंने कहा यूज अ रिलेटिव प्रोनाउन, आई विल नॉट फॉरगेट टू मेक अ मेंशन दैट यू नीड टू
use this particular relative pronoun whichever you can use, जिसे भी आप use कर सको. You have to use a relative pronoun, okay, fine, but use this relative pronoun right after the antecedent as far as possible. Use it right after the antecedent. जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आप इस्तेमाल करोगे, नेवर फॉरगेट, जहां तक मुमकिन हो कोशिश करो कि इस रिलेटिव प्रोनाउन को राइट आफ्टर द एंटीसीडेंट आप इस्तेमाल करो, ठीक एंटीसीडेंट के बाद. इसके बाद क्या होगा, प्रिंसिपल नंबर 3, प्रिंसिपल नंबर 4, वो जब मैं एग्जांपल डील करूंगा हम तब बात करेंगे. देयर आर 4 फंडामेंटल्स, 4 फंडामेंटल्स हैं. आई टॉक्ड अबाउट 2, मैंने 2 के बारे में बात की, एंड आई हैव हेल्ड बैक, मैंने अभी नहीं बोला. प्रिंसिपल नंबर 3, दैट्स फंडामेंटल नंबर 3 एंड 4. लेट्स टॉक अबाउट देम लेटर ऑन, उनके बारे में थोड़ा आगे जाके बात करेंगे. नाउ सपोज फॉर एग्जांपल you are given a pair of sentences like this. He took poison, and the very next example, for example, reads like this: he died yesterday. Now if you are asked to join these two sentences, अगर आपसे कहा जाएगा कि इन 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करो, बट इन अ वे एज अ रिजल्ट टू मेक अ रिलेटिव क्लास, इस तरह से कि आप एक रिलेटिव क्लास बनाओ, तो कैसे होगा. मैंने कहा लुक फॉर एन एंटीसीडेंट, फंडामेंटल नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट. ओके, हाउ, कैसे आप देखोगे एंटीसीडेंट, कैसे हम ढूंढते हैं अपने नए सेंटेंस के लिए. लेट मी टेल यू पीपल, आप देखो जो आपके स्टेटमेंट नंबर 1 का सब्जेक्ट है या आपके स्टेटमेंट नंबर 1 का ऑब्जेक्ट है, क्या ये जो सब्जेक्ट आपके स्टेटमेंट नंबर 1 का है, फॉर एग्जांपल आई हैव टिक्ड इट, मैंने सब्जेक्ट पे टिक लगाया है. अगर आपके स्टेटमेंट नंबर 2 में ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 में सब्जेक्ट है, अगर यही इफ द सेम सब्जेक्ट हैपेंस टू बी एक्टिंग एज द सब्जेक्ट इन द वेरी नेक्स्ट एग्जांपल एज वेल, कि अगर दूसरे एग्जांपल में भी यही सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन रहा है, मसलन ही यहां पे सब्जेक्ट था, वही ही एग्जांपल नंबर 2 में भी सब्जेक्ट बना है, तो इस तरह आपके पास क्या है, you have got common subject, आपके पास एक common subject. And now if you have got common subject, अगर आपके पास common subject है, you can take it as the antecedent, आप इसे अपना antecedent बना सकते हो, तो ये आपका antecedent बन सकता है. Number 1. Number 2, if you have got the subject and the object common, अगर आपके पास सब्जेक्ट एक स्टेटमेंट का और ऑब्जेक्ट दूसरे स्टेटमेंट का कॉमन हो, इट्स नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट ही कॉमन होगा, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी कॉमन हो सकता है. और अगर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है, यानी जो यहाँ पे सब्जेक्ट है स्टेटमेंट नंबर 1 में, अगर वही इंडिविजुअल थिंग प्लेस एनिमल व्हाटसोएवर स्टेटमेंट नंबर 2 में ऑब्जेक्ट बने, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट दूसरे में ऑब्जेक्ट बन रहा है, कॉमन है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उस कॉमन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी कॉमन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम ले सकते हैं एज एंटीसीडेंट, वो बनाएगा हमारा एंटीसीडेंट, वो बन सकता है हमारा एंटीसीडेंट. Hence the case is कि एंटीसीडेंट या तो आपका कॉमन सब्जेक्ट होगा या ये कॉमन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या तो आपके 2 सेंटेंसेस का सब्जेक्ट कॉमन होगा या आपके 2 सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कॉमन होगा. और अगर ऐसा हुआ, अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो उन 2 सब्जेक्ट्स को लेंगे हम, उन्हें एज एंटीसीडेंट यूज करेंगे, और या अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है तो उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लेंगे, उसे एज एंटीसीडेंट यूज करेंगे. लेट्स सी हाउ टू डू इट. ख्याल रहे, अब आपका एंटीसीडेंट कौन होगा, इट विल बी द कॉमन सब्जेक्ट और द कॉमन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. ये आपका कॉमन सब्जेक्ट होगा 2 एग्जांपल्स में, या 2 एग्जांपल्स में आपका कॉमन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा. ओके फाइन. नाउ अब जो ये 2 एग्जांपल्स हमारे पास दी गई हैं, यानी ये जो पेयर ऑफ सेंटेंसेस हैं, इनमें आप देखो, इन स्टेटमेंट नंबर 1 वी हैव गॉट ही एक्टिंग एज सब्जेक्ट, इन स्टेटमेंट नंबर 2 अगेन वी हैव गॉट ही, एक बार फिर हमारे पास वही ही है जो सब्जेक्ट है, हेंस वी हैव गॉट द कॉमन सब्जेक्ट. अब अगर हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट है तो कॉमन सब्जेक्ट को हम पहले एज एंटीसीडेंट लिखेंगे,
यहाँ ये जो सब्जेक्ट ही है, इन दो के बदले हम एक ही लिखेंगे, चूंकि ये कॉमन है, ये सेम है, तो हमने ही लिखा, ये हमारा एंटीसीडेंट बनेगा। ओके, अब ये एंटीसीडेंट कैसे बनेगा, अभी नहीं बना, अभी हमने सिर्फ कॉमन लिया है। आगे इस एंटीसीडेंट के बाद रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए फंडामेंटल नंबर 2 में हमने कहा था यूज रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोना यूज रिलेटिव प्रोनाउन हु, मैं हु इस्तेमाल कर रहा हूं, ही हु, ओके, ही हु। तो इस तरह से मैंने पहले 2 प्रिंसिपल यूज किए। आई हैव लुक्ड फॉर द एंटीसीडेंट, मैंने एंटीसीडेंट ढूंढ निकाला, एंड आई हैव यूज्ड द रिलेटिव प्रोनाउन एज वेल, मैंने रिलेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल किया। सो दीज आर द फर्स्ट 2 प्रिंसिपल्स। एंड फंडामेंटल नंबर 3 आर प्रिंसिपल नंबर 3 स्टेट्स लाइक दिस। प्रिंसिपल नंबर 3 जो आपका है वो कुछ ऐसा कहता है, लुक कि अब जब आपने एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, यू हैव गॉट दिस पार्ट रिमेनिंग इन स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 में आपके पास क्या बचा है, अब चूंकि ही हमने ऑलरेडी लिया है तो टुक पॉइजन। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 में वी हैव गॉट डाइड यस्टरडे। डाइड यस्टरडे इज द रिमेनिंग पार्ट, ये अभी बचा हुआ हिस्सा है। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है यूज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। ये जो S1 आपका है, इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो पहले इस्तेमाल करो, S1। और अगर हमने S1 पहले इस्तेमाल किया तो इसके बाद क्या बचा हमारे पास, S2 का बचा हुआ हिस्सा। वी विल यूज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ S2 आफ्टर दिस फुल स्टॉप। इस तरह आपका रिलेटिव क्लॉज बन जाएगा। सो व्हाट वी डू इज दैट वी यूज द एंटीसीडेंट, पहले तो एंटीसीडेंट, एंड आफ्टर दैट द रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद वी हैव यूज्ड S1, हमने S1 इस्तेमाल किया, एंड आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड S2 हमने इस्तेमाल किया। बट लेट मी टेल यू पीपल वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक जरूरी बात मैं आपको बोल दूंगा। प्रिंसिपल नंबर 3 में हमने कहा यूज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ S1, लेकिन प्रिंसिपल नंबर 3 सिर्फ यही नहीं कहता है। प्रिंसिपल नंबर 3 कहता है यूज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ S1 और S2। स्टेटमेंट नंबर 1 का बचा हुआ हिस्सा लिखो या स्टेटमेंट नंबर 2 का बचा हुआ हिस्सा लिखो। बट रिमेंबर, अगर हमने यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 का बचा हुआ हिस्सा लिखा तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 का बचा हुआ हिस्सा आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमने लिखा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने स्टेटमेंट नंबर 2 का बचा हुआ हिस्सा यूज किया है, हियर यू विल हैव टू यूज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ S1। अगर पहले आपने स्टेटमेंट नंबर 2 का बचा हुआ हिस्सा लिखा है तो उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 1 का बचा हुआ हिस्सा आपको लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एज सच यू कैन मेक अ रिलेटिव क्लॉज। इस तरह जो आपका रिजल्टेंट सेंटेंस बनेगा उसे आप चेक करो तो आपके पास एक रिलेटिव क्लॉज होगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसी सेंटेंस, इन्हीं 2 सेंटेंसेस को मिलाऊंगा, एक नया सेंटेंस बनाऊंगा, फिर देखूंगा कि क्या हमारे पास रिजल्टेंट सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज है या नहीं। ओके फाइन, ही हमने कॉमन लिया एज एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन में फिलहाल हु यूज कर रहा हूं। यू डोंट नो व्हेन टू यूज हु एंड व्हेन टू यूज अदर रिलेटिव प्रोनाउंस, विल सी दैट इंशाल्लाह। बट हियर आई एम telling you people how to make a relative clause, just showing it through examples. Okay fine, तो antecedent के बाद relative pronoun। अब S1 इस्तेमाल करूं मैं या S2, क्योंकि प्रिंसिपल नंबर 3 कहता है use the remaining part of S1 और S2। ख्याल रहे हमारा जो relative pronoun यहाँ पे है who। अगर relative pronoun who है, आपके पास चॉइस है, आप S1 या S2 इस्तेमाल करो, the choice rests with you, आपके पास चॉइस है। बट हम चॉइस पे नहीं छोड़ेंगे, इसे थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। हम क्या करेंगे, S1 या S2 में से कौन सा स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे। डू गो फॉर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स मेंशन। आप यहाँ पे जो 2 इवेंट मेंशन किए गए हैं, टुक पॉइजन और डाइड यस्टरडे, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देखो। और जो इवेंट ऑर्डर में दूसरे इवेंट से पहले हुआ होगा, यानी अगर स्टेटमेंट नंबर 1 में बयान किया गया इवेंट पहले हुआ है तो पहले हम S1 लिखेंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट नंबर 2 में मेंशन किया गया, डिस्क्राइब किया गया इवेंट पहले हुआ है तो पहले S2 लिखेंगे। As far as I am concerned and as far as these 2 events are concerned, I think statement number 1 might have taken place first. This particular event might have taken place first. ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इवेंट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, took poison, ये पहले हुआ होगा, उसके बाद वो मर गया होगा। Hence I will go for S1 first. पहले मैं S1 लिखूंगा, he who took poison.
he who took poison. Okay, fine. तो इस तरह से मैंने common subject antecedent लिया, relative pronoun मैंने for example who use किया, and then I went for the chronological order of these two events and I found that this particular event has taken place prior to this one, hence I used S1. इस तरह से मैंने statement number 1 का बचा हुआ हिस्सा लिखा, he who took poison. अब इसके बाद दूसरा इवेंट हमारे पास बचा S2, तो वो ऐड कर देंगे इसके साथ, died yesterday. Died yesterday. As such, if you can see, अगर आप देख सको जो आपके पास नया सेंटेंस है, in this very particular sentence we have got the relative clause. Okay, he who took poison died yesterday, and as far as this who took poison is concerned, this is the dependent clause introduced by the relative pronoun, and after having been joined with this particular independent clause, he died yesterday, this gives us information about he. यह हमें he के बारे में जानकारी देता है, antecedent के बारे में, यानी noun या pronoun के बारे में बात करता है ये, तो as a result बन गया ये relative clause, also known as adjective clause. Adjective का काम करता है, हमारे noun या pronoun के बारे में कुछ बोलता है, तो this is the relative clause. Okay, fine, this is the relative clause. Now you have to see whether this is a defining one or a non-defining one. कि क्या ये defining relative clause है या non-defining है? Let me tell you people, he died yesterday, वो कल मर गया. We don't know कि वो कौन वो, इसके लिए और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि वो कौन, who took poison, अरे वो जिसने जहर खाया था वो, तो अब ये डिफाइन करता है एंटीसीडेंट को, तो ये है हमारा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास. ओके फाइन. तो इस तरह से हमें जाना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव क्लासेस, इस तरह से हम रिलेटिव क्लास बना सकते हैं. दिस इज द वे टू फॉर्म अ रिलेटिव क्लास, कि कैसे हम बनाएंगे रिलेटिव क्लास, ये है तरीका हमारे पास. What we do is the fact that the first thing, look for an antecedent. Second thing, use a relative pronoun. Third thing, use the remaining part of S1 or S2. और S1, S2 में से हम पहले कौन सा पार्ट लिखेंगे? As far as the relative pronoun who is concerned, जहां तक relative pronoun who का ताल्लुक है, मैंने बोल दिया we go for the chronological order. हमारे पास हालांकि चॉइस है, फिर भी हम chronological order देखते हैं. तो अब मसला क्या है रिलेटिव क्लासेस बनाना कैसे, ये तो बहुत आसान हो गया फिर कि एंटीसीडेंट ढूंढ लिया, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया, S1 S2 एटसेट्रा एटसेट्रा हो गया. नो, नाउ द केस इज कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आप कब यूज करोगे. वी हैव गॉट 10 सच रिलेटिव प्रोनाउंस, हमारे पास ऐसे 10 प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस जो ज्वाइन करने का काम करते हैं. बट लेट मी टेल यू पीपल, आउट ऑफ दोस 10, उन 10 में से देयर आर 5 ऐसे हैं जो हमारे 5 रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे हैं विच आर यूज में इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक एडजेक्टिव क्लासेस बनाने के लिए. अब आप बोलोगे बाकी के 5, लेट मी टेल यू पीपल, वो भी ज्वाइन करने का काम करते हैं क्लासेस, बट व्हाट हैपेंस इज द फैक्ट दैट दे रादर मेक एडवर्बियल क्लासेस एंड नॉट एडजेक्टिव क्लासेस. वो एडवर्बियल क्लासेस बनाते हैं, एडजेक्टिव क्लासेस नहीं. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव दैट्स एडजेक्टिव क्लासेस. यहां पे हमारा टॉपिक रिलेटिव यानी एडजेक्टिव क्लासेस है. ओके, डू नॉट मिस दिस इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने वाला हूं. ये जो है फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव क्लासेस, आपके एग्जाम में आप कैसे रिलेटिव क्लासेस बनाओगे. तो Let me tell you people, now we will go for the use of relative pronouns. अब हम देखेंगे relative pronouns का use, कि कौन सा relative pronoun हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं. बाकी की चीजें तो हमारी समझ में आई. relative class बनाना काफी आसान है. You can go for the antecedent लो, use a relative pronoun. अब मसला है relative pronoun कौन सा use होगा. After that S1 or S2, that is an easy thing, वो काफी आसान है. First let me tell you people when to use relative pronoun who. रिलेटिव प्रोनाउन हु आप कब इस्तेमाल करोगे, ये हु कब इस्तेमाल होता है इन ऑर्डर टू मेक रिलेटिव क्लास बनाने के लिए. लेट मी टेल यू पीपल, सपोज यू आर गिवन a pair of sentences. आपके पास दिए गए 2 सेंटेंस हैं, और अगर आपके पास दिए गए दोनों सेंटेंसेस में, लेट मी टेल यू पीपल, सेम ह्यूमन बीइंग, अगर आपके पास दिए गए दोनों स्टेटमेंट्स में सेम ह्यूमन बीइंग, एक ही ह्यूमन बीइंग हो जो एक्स एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है,
यानी अगर आपके पास दिए गए दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंसेस में आप देखो एक ही ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट बन रहा है, इफ द सेम ह्यूमन बीइंग, इफ द सेम ह्यूमन बीइंग हैपेंस टू बी एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट इन बोथ ऑफ द गिवन एग्जांपल्स, दी गई दोनों एग्जांपल्स में अगर एक ही ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट बन रहा है, बाय देन वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन हु, तब हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु किसके साथ इस्तेमाल होता है? ह्यूमन बीइंग के साथ। कब? जब ह्यूमन बीइंग ए सब्जेक्ट एक्ट कर रहा हो। यहाँ पे ख्याल रहे मैं दो एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं। अगर दोनों एग्जांपल्स में एक ही ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट बनता हो तो हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु। फॉर एग्जांपल के जरिए देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हु कब इस्तेमाल होगा। For example, you are given a pair of sentences like this. The girl has studied in America. Okay, fine. And if you are given another example that reads like this, she is the daughter of, say, CM, Chief Minister, for example. तो hence you are given a couple of examples, दो examples आपके पास हैं, दो sentences आपके पास हैं. Now you are asked, अब अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए to join these two सेंटेंसेस, इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करो, बट इन वे जैसे मैंने पहले ही कहा कुछ इस तरह से कि जो नया सेंटेंस बने दैट मस्ट कंटेन अ रिलेटिव क्लास, तो आप कैसे करोगे? हियर इन दिस वेरी एग्जांपल द गर्ल ह्यूमन बीइंग इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, फाइन. इन एग्जांपल नंबर 2 शी, Who is she? She is the girl. यहां पे भी वही गर्ल सब्जेक्ट है. आप देखो इन बोथ ऑफ दीज एग्जांपल्स, इन दोनों एग्जांपल्स में यू हैव गॉट सेम ह्यूमन बीइंग एक्टिंग एज द सब्जेक्ट, सेम ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है. और अगर ऐसा है सेम ह्यूमन बीइंग कॉमन सब्जेक्ट है आपके पास, यहां पे जो सब्जेक्ट है वही यहां पे सब्जेक्ट है, और इसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो सेम ह्यूमन बीइंग है. पहले तो हम एंटीसीडेंट लेंगे कॉमन सब्जेक्ट, लेकिन जब आपके पास कॉमन सब्जेक्ट ऐसा होगा कि एक नाउन और एक प्रोनाउन होगा, यानी नाउन प्रोनाउन अगर आपका कॉमन सब्जेक्ट होगा तो रिमेंबर वी ऑलवेज गो फॉर द नाउन. हम हमेशा नाउन ही इस्तेमाल करते हैं, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. आई हैव यूज्ड द गर्ल इंस्टेड ऑफ शी की जगह मैंने द गर्ल इस्तेमाल किया है. ओके, द गर्ल. आप द गर्ल और शी चूंकि कॉमन सब्जेक्ट था मैंने एक ही लिखा द गर्ल. अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल होगा? हु. क्यों? बिकॉज इन बोथ ऑफ दीज एग्जांपल्स, इन दोनों एग्जांपल्स में सेम ह्यूमन बीइंग द गर्ल इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, एक ही ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है. वी विल गो फॉर द रिलेटिव प्रोनाउन हु. हम रिलेटिव प्रोनाउन हु इस्तेमाल करेंगे, द गर्ल हु. ओके, फाइन. अब जब आपने हु इस्तेमाल किया, प्रिंसिपल नंबर 3 और 4 का जो कंफ्यूजन था वो मैंने ऑलरेडी दूर कर दिया है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखो इनका, दो इवेंट्स का, जो दो इवेंट्स हुए हैं. अगर आपको पता चले पहले कौन सा वाक़ा हुआ है तो पहले वही स्टेटमेंट ऐड कर दो. फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है S2 पहले हुआ होगा, ये इवेंट पहले हुआ है, तो इसे ऐड कर दो, या S1. और अगर आपकी समझ में ना आए, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना देख पाओ, यू हैव गॉट द चॉइस. हु के बाद आपके पास चॉइस रहती है, रिमेंबर आपके पास चॉइस है. तो अब मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं, द गर्ल हु हैज स्टडीड इन अमेरिका is the daughter of CM, and the girl who is the daughter of CM has studied in America. I will go for this one. The girl who is the daughter of CM, has studied in America. As a result, we have got a sentence which reads like this. The girl, we have used the relative pronoun who, then we have used the remaining part of S2, then we have added the remaining part of S1. As a result, we have got a sentence. The girl who is the daughter of CM has studied in America. वो लड़की जो CM की बेटी है has studied in America, उसने अमेरिका में पढ़ा है. ओके, अगर हम इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़े रिलेटिव क्लास ड्रॉप करके, the girl has studied in America, लड़की ने अमेरिका
में पढ़ा है। क्या आपको पता है कि कौन सी लड़की? नो, वी डोंट नो। हेंस ये जो रिलेटिव क्लास है गिव्स अस एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसीडेंट, ये एंटीसीडेंट के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन देता है। डिफाइंस द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट को डिफाइन करता है। एज अ रिजल्ट ये जो हमारे पास क्लास है, हु इज द डॉटर ऑफ CM, हु इज द डॉटर ऑफ CM happens to be the defining relative class, also known as the restrictive or identifying relative class. So this is when to use who. अब हमने देखा हम who का इस्तेमाल कब करते हैं? in order to make a relative class. relative class बनाने के लिए हम who का इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास given दो एग्जाम्पल्स हैं और अगर दोनों एग्जाम्पल्स में सेम ह्यूमन बीइंग इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, सेम ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, यानी सेम ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट बन रहा हो दोनों एग्जाम्पल्स में, तो वी गो फॉर हु, हम इस्तेमाल करते हैं हु।